So he will speak on the impact of terrorism on the exercise of human rights or rights. और एक बात उनके लेक्चर से ये जाहिर होगी आपको कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से, क्योंकि टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर होते हैं ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज से बहुत कम लोग मर रहे हैं, और स्टेट हैज एक्चुअली, सम ऑफ द स्टेट्स हैव बिकम टेररिस्ट्स. स्टेट इज किलिंग मोर पीपल देन इंडिविजुअल टेररिस्ट्स. अब आप पैलेस्टाइन में देखिए 50,000 लोग मारे गए हैं. स्टेट टेररिज्म, वार, जो वार चल रही है अभी, ईरान इजराइल वार का इफेक्ट हम समझते हैं कि होगा, बिकॉज सीज फायर में बी देयर इन फ्यूचर बिटवीन एंड इजराइल आल्सो. क्योंकि इजराइल अभी, अब आप तेल अवीव जाएं तो ऐसा लगेगा कि आप गाजा में हैं. तेल अवीव has become like Gaza. So without taking much of the time of our next resource person, I request Professor Muhibul Haq to share his thoughts, ideas, analysis, criticisms, suggestions. देखिए, जब किसी को उनके राइट्स नहीं दिए जाते हैं ना, तो वही लोग टेररिस्ट बन जाते हैं. PLO, Palestine Liberation Organization, is having observer status in the United Nations. एक बार जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी पैलेस्टाइन इशू पर. यासिर अरफात was invited to participate in that debate. अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि साहब वो तो टेररिस्ट हैं, हम उनको वीजा नहीं देंगे. जब ये डिसीजन लिया तो अमेरिकन जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टुक ए डिसीजन to shift the entire session of General Assembly from New York City to Geneva. एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि for entire world he was a freedom fighter, for Israel or for America he was a terrorist. Yasir Arafat was a terrorist for them, but he was a freedom fighter fighting for his own homeland. With these few preliminary remarks, now I request Professor Muhibul Haq to engage the class. You will enjoy the class. I request him to spend some 10 minutes at the end for question answers. Thank you very much. The floor is yours. Thank you, sir. Thank you for the kind words. So, participants, as Professor Vijapur sir, one of my teachers, he has already pointed out that how terrorism is threatening human rights all over the world. Basically, there are many issues that is relating with the terrorism and how it violates human rights that we are going to discuss. But before we delve deep into what is terrorism and how it threatens human rights, the most important thing, first of all, we have to understand that terrorism itself is a value-loaded term. And this is the reason that you will find that what has happened at the international level, that you don't have a universally accepted definition of terrorism. There are many definitions of terrorism, but you will find there is not even a single universally accepted definition of terrorism. For example, one definition that should be accepted by the United Nations, or definition that should be accepted by the Interpol. You will find what is happening, that these organizations, they are basically dealing with the terrorists in the world through what we call by identifying certain terrorist activities. And this is the reason that on the basis of that, they deal with the terrorist. And that is why, as an academician, since all teachers have joined, so our approach will be different from others. We should take into account all perspective that is related with the terrorism. So with this, first of all, the first point that should be in your mind, that terrorism is basically a word that is derived from the Latin verb terrere. That is Terrere, terrere, which means to cause tremble or to frighten. And you see that this Latin verb that was responsible for the word terrorisme in French.
And this word that, terrorism that we have today, it has been derived from French to English. So you'll find Latin, then to again French, and French to English. But interesting part why I was, discussing this, that first of all, you see that this term terror was used to describe what is called a situation that was there in France after French Revolution. In the post-revolutionary France, there was something that was called Reign of Terror. And this Reign of Terror was basically, inflicted upon the people by the state. It was a state terror. A state was responsible for causing tremble and for frightening punishment that was given to the people. So that is why it is the state terror that is responsible for the development of this term, which has entered into our dictionary today. Again, you see that when we are discussing that there is no universally accepted definition of terrorism, it doesn't mean that we have not tried to define terrorism. There are many definitions of terrorism, hundreds of definitions of terrorism are there. But before we define terrorism, we should take into account one aspect, that is, there are two kinds of definition of terrorism. One group of definition that you will find that have been developed by the experts, academicians, or the people, those who are dealing with this kind of issue, and they are taking into account socio-economic, cultural, and other factors that are responsible for terrorism anywhere in the world. And secondly, you'll find that the national governments, they have tried to define terrorism according to their situation, according to their challenges. And this is the reason that, every country is not facing the same kind of terrorism. Some kind of terrorism may be different from, our challenge of terrorism is different from the challenges of terrorism in Pakistan or in Afghanistan or in Yemen or in Iraq or in other parts of the world. This is the reason that you'll find that there are many, many definitions of terrorism. But broadly, we can, divide these definitions into two. That is, one is governmental or official definition of terrorism, which is developed by the national governments. And then the second is the definition that are given by the experts or by the scholars, those who have worked on, on this particular issue. Now, in the governmental definition, you will find most of the time, you will find it is an actor-centric discussion or actor-centric definition. It means that whenever the states are going to define terrorism, they will take into account that who is involved in the act of terror. So that is why they will always identify non-state actors in the act of terror. If the same kind of activities are committed by the people in uniform, they will not, deal under the, under the rubric of terrorism. This is the problem. On the other hand, when we have academic definition of terrorism, it means that the experts who are trying to define terrorism, you will find that many biases, you will find prejudices, you will find, and it all depends upon which side of the fence you are. When I say which side of the fence you are, this is very important, that who is defining. Can you please put your mic on, mute mode? All the participants, please. Are you all comfortable in English, I think? Huh? There should not be any problem in English. Huh? सर प्लीज बाइलिंगुअल मुझे मिक्स बाइलिंगुअल सर सर थोड़ा हिंदी में बोलिएगा सर थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है bilingual lecture will help us to understand. Okay. I'll try to switch over to Hindustani Yes, as sir, it is well. better to have bilingual. तो देखिए जो डेफिनेशन जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं टेररिज्म, ये जानते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड एट द इंटरनेशनल लेवल, दैट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज a global scourge, as a threat to international peace and security by the United Nations. यानी टेररिज्म को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया गया है पूरी दुनिया में, और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की है. मैंने अभी आपको बताया कि जो डेफिनेशन है टेररिज्म का वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है. यानी जो डेफिनेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्टिविटीज को तो आइडेंटिफाई किया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज को, बट कोई ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म नहीं है.
When we say that there is no universally accepted definition of terrorism, does it mean that we are running short of words? क्या हमारे पास words नहीं है कि हम define कर पाए terrorism को? ऐसा नहीं है. You know, when we don't have a definition of terrorism, universally accepted definition of terrorism, it is not by accident, it is by design. उसकी वजह क्या है कि जो यूनाइटेड नेशंस में डिस्कशन होता है उसमें आप जानते हैं कि who are the members of the United Nations? Of course, the states. So governments are represented. And when the governments are represented, they don't want that there should be a universally accepted, objective, and precise definition of terrorism. Because if this happens, you'll find that most of the states in the world will be declared as terrorist state. Why I'm coming to this point? You know, why most of the states will qualify to become or to be designated as terrorist state in the world. And this is the reason that the governments have avoided having a universally accepted definition of terrorism. आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस में कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी होनी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ. अभी तक हमारे पास 13-14 कन्वेंशन या ट्रीटी है टेररिज्म के, डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म के खिलाफ, और ये सब एडहॉक मेजर्स हैं. कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी टेररिज्म के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक डेवलप नहीं की है. इंडिया ने प्रपोज किया था. बट इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी अगेंस्ट टेररिज्म, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन टेररिज्म का रखना पड़ेगा. And if you are going to have a comprehensive definition of terrorism, then what will happen? That if it is objective and precise, you will find many states are going to be declared as terrorist state. This is the reason that, you know, the state themselves have avoided. So it is by design, it is not by accident. We all are capable of defining terrorism, but states ने खुद इसको avoid किया है. Number two, before we proceed, you know, to discuss this particular issue, you know, there was a study that was conducted by Bessoni, and that is about the victims of terrorism from 1901 to 2000. यानी उन्होंने स्टडी ये की कि 100 सालों में 1901 से लेकर के 2000 तक कितने लोग टेररिज्म के विक्टिम हुए, यानी दहशतगर्दी से कितने लोग मुतासिर हुए, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग परेशान हुए इससे. और आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस स्टडी में ये पाया गया कि 70 मिलियन प्लस 1 लाख पीपल वर किल्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन 100 years. देखिए, आप सब टीचर हैं और मैं कह रहा हूं 70 मिलियन प्लस 1 लाख, यानी 7 करोड़ प्लस 1 लाख. उसकी वजह क्या है? मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? मैं 7 करोड़ 1 लाख कह सकता था. 7 करोड़ प्लस 1 लाख. You know why? Because Bessoni found that there are two kinds of terrorism. One is state terrorism, and number two is non-state terrorism. You know, one form of terrorism in which state agencies are involved, means the state themselves are involved in terrorist activities. They are killing their own citizens, or they are killing citizens of other countries through proxy wars or by aiding and abetting terrorism. You have already witnessed in our own country the Pahalgam attack, and we can better know, you know, what non-state terrorism is. You know, your neighboring country can inflict this kind of attack upon you. So this is what we have to understand, and that is why he found that there is one thing that is called state terrorism, and there is another thing that is called non-state terrorism. And according to him, in the non-state terrorism, in 100 years, 1 lakh people were killed. So how many people were killed in non-state terrorism, where state is not involved? It is 1 lakh people. Means organizations, private organizations, terrorist organizations, they have killed, you know, in 100 years, 1 lakh people from 1901 to 2000. And according to him, states have killed 7 crore people in state terrorism. That is 70 million people were killed by the states, where the national governments are involved or the states are involved in the terrorist activities. So that is why, you know, I am saying that in terrorism, 70 million plus 1 lakh people were killed. It means you have to differentiate between state terrorism and non-state terrorism. What is more dangerous? It is of course state terrorism. Why? Because Max Weber को अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो Max Weber कहते हैं
कि state uses what is called organized violence. State is the organizer of violence and state has monopoly over means of violence. जो स्टेट है उसके पास यानी स्टेट मोनोपोलाइज करता है वायलेंस को, लिए स्टेट ऑर्गेनाइज वायलेंस करता है, उसके पास आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सोसाइटी डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्वाड होते हैं. तो अल्टीमेटली स्टेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे कैन इन्फ्लिक्ट मोर इंजरी, दे कैन किल मोर पीपल बिकॉज दे आर यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, एंड दिस इज द रीजन दैट यू विल फाइंड इट हैज हैपेंड. But as a teacher, as a researcher, most of you have already completed your PhD, and if you want to work further on this terrorism or conflict, violence, etc., whenever you are going to search the literature on terrorism, you'll find that 90% of the literature will be focusing on non-state terrorism, which is responsible for killing 1 lakh people in 100 years. And you will find that the state terrorism does not attract that much attention of the academicians or the experts. And this is the irony of the matter. Why? Because we are living in the era of post-truth. आप लोगों ने सुना होगा post-truth. When we are living in the era of post-truth, यहाँ पर objective जो realities होती हैं या truth होते हैं वो मानी नहीं रखते. But you'll find that the truth is socially constructed. When the truth is socially constructed, you can find that the myth can be projected as reality. Propaganda can become the reality, and that's why the communities, states, people, they all can be targeted. So that is why when we are living in the era of post-truth, so what is happening that there are many information that we are having, we have to verify. We should be very careful. Being teacher, we should be more careful. So that is why every information is to be verified, and that's why that what we have learned in the research methodology. So therefore, this is one aspect that you have to remember. आपने एक बात और विटनेस की होगी कि you see the terrorism as a threat to international peace and security was basically projected from 1990s onward. 1991 के बाद से पूरी दुनिया में टेररिज्म को एक इंटरनेशनल थ्रेट या ग्लोबल थ्रेट के तरफ पेश किया गया पूरी दुनिया में. Why this has happened? The timing is also very, very important. When I'm saying that it all happened after 1990s, that terrorism was projected as a global threat. From 1947 to 1990, you will find it was red danger. कोल्ड वॉर के टाइम में पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्शन था वो रेड डेंजर कहा जाता था, रेड थ्रेट, रेड मीनास, रेड टेररिज्म, रेड इंसर्जेंसी. These were projected as threat to international peace and security. And these terms were frequently used. Why? Because communism was considered by the Western scholars and the governments as a threat to international peace and security. Why? You'll find in many countries, you'll find the guerrillas were fighting. In many countries, the revolutionaries were fighting. And this was the reason that terrorism, this communism or Marxism was declared as a threat. But in 1991, you'll find Soviet Union disintegrated. Soviet Union collapsed. So the red danger, the propaganda machinery that was already there in the world against communism, that was already there. This propaganda itself is an industry. तो वो तो था, लेकिन एक problem आई कि now the enemy was not there. How to keep intact the organization like NATO, for example, the largest military alliance in the world? You should remember that this NATO countries in the world, they are basically spending 70% of the world's defense budget. It was an organization that was established during the Cold War, but still it is existing. Now, अगर ये अभी तक मौजूद है तो इसको चूंकि 1991 के बाद से ये बात करने लगे थे लोग, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज, कि अब इसकी मिलिट्री अलायंस की कोई जरूरत नहीं है. There should be expenditure on education, health, poverty elevation, etc. This should be the state का पर्पस होना चाहिए. But at that time, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज आती हैं, और वो हमें जो सोशल साइंस के लोग हैं वो जरूर जानते होंगे. जो साइंसेस के लोग हैं
उनको ये जानना चाहिए कि एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस यानी तहजीबी तसादुम या तहजीबी कशमकश जिसे कहते हैं, क्लैश ऑफ सभ्यताएं जो है उनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको कहा गया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। और इस थ्योरी को प्रोपगेट करने वाला प्रोपाउंडर जो थे इस थ्योरी का, उसका नाम था सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन. He was a professor of political science in Harvard University, but he was not a harmless professor. He was also political and security advisor to White House. तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का टाइम तो खत्म हो गया। ये बात सही है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो अब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में नहीं होगी, बिकॉज सोवियत यूनियन इज नॉट देयर एट दैट टाइम। बट ही सेड दैट द थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस अभी भी हैं, और अब जो सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सिविलाइजेशंस के बीच में हो सकती है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस। और उन्होंने जो सिविलाइजेशन आइडेंटिफाई की, मेजर सिविलाइजेशंस, उसमें हमारी अपनी इंडियन सिविलाइजेशन, सिनिक सिविलाइजेशन, यू विल फाइंड इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, ऑल दिस सिविलाइजेशन उन्होंने आइडेंटिफाई की। एंड व्हाट ही इज प्रोपगेटिंग, remember that he was also a security advisor and political advisor to White House. And what he's suggesting, if you read his book Clash of Civilization, that you must read, it is a must read book. In the Clash of Civilizations, Huntington says, and I quote, he says that there can be no true friends without true enemies. There can be no true friends without true enemies. He further says, you cannot love what you are unless you hate what you are not. You cannot love what you are unless you hate what you are not. Unquote. यानी वो कह रहे हैं कि कोई आपके ट्रू फ्रेंड्स उस वक्त नहीं हो सकते जब तक आपके ट्रू एनिमीज ना हो। यानी you must have an enemy. Then only you can have your unity intact. So NATO can be relevant and NATO can be intact only when you have enemy. But in 1991 you will find Soviet Union disintegrated. तो अब तो कोई रेड मिनेस, रेड डेंजर, रेड पेरिल रह नहीं गया था, कोई एनिमी नहीं था। So that is one thing. Now they needed an enemy. So that is why you'll find from 1991 onward, you'll find this was also a time when America, with the help of its allies, attacked Iraq, and there was a strong anti-America sentiments in the Middle Eastern countries, especially among the public, not among the policymakers. So ultimately, at that time, he identified fault lines between civilization, and he says that the most likely chances are that there is going to be a conflict between Islamic civilization and Western civilization. And that's why this was the time when he said that, there is a danger, and that is called Islamic militancy, Islamic terrorism, Islamic extremism, Islamic fascism, Islamic militancy, Islamic fundamentalism. This kind of terms were frequently used in the Western media as well in the serious academic work. You'll find thousands of books were written, many movies were made, and you will find that it was said that Western civilization and even the global threat of terrorism is there, and that is most likely is there from what is called the Islamic militancy according to Western paradigm. This was the time when a second very important thesis came, and you must have heard about Francis Fukuyama. Francis Fukuyama wrote the book The End of History and the Last Man. Famous book, The End of History and the Last Man. And what is his thesis in The End of History and the Last Man? He said that after the demise of the Soviet Union, or disintegration of the Soviet Union, or collapse of communism all over the world, what is happening, that the ideological evolution of mankind, tall claim you just see, इसी को वेस्टर्न एरोगेंस कहते हैं। वो कह रहा है कि the ideological evolution of mankind is over. It is the final culmination of ideological evolution of man is capitalism, liberalism. तो वो कहता है कि ये जो लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म है, ये फाइनल कल्मिनेशन है, और इट्स अ विक्टोरियस
triumphant ideology, all other ideologies like fascism, like syndicalism, socialism, communism, Marxism, they all have gone. And there is one ideology that is surviving, and that is capitalism, liberalism. तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो डेमोक्रेसी, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी और जो कैपिटलिज्म है, दैट इज द फाइनल आइडियोलॉजी, और पूरी दुनिया में किसी और आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं. This paradigm was of course challenged by or this tall claim was challenged by the scholars or the thinkers of the global south. You know, the contradictions of the Western liberal democracy and especially capitalism were already exposed, and the people criticized it. You will find a lot of scholarly discussion on all these. You all are teachers, you can search the material, you will find interesting material, very fine scholarly material you will find on these issues. So basically you'll find after the demise of the Soviet Union, earlier it was communism, now it was terrorism that was projected as a threat to international peace and security. Finally, you will find that in 2001, on September 11, 2001, there was attack on WTC, World Trade Center. One of the safest place in the world that was attacked by the terrorists, and in which more than 3,000 people died. And it was a non-state terrorism, act of non-state terrorism. पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में अगर आप देखें, जब से अमेरिका है, यानी अमेरिकन इंडिपेंडेंस से देख लीजिए 1776 से, इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी अमेरिकन सॉइल पे इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था जितना बड़ा अटैक अमेरिका पे 2001 में होता है. और ये नॉन स्टेट टेररिज्म के जरिए किया गया था, एज अमेरिका ने पॉइंट आउट किया. इस नॉन स्टेट टेररिज्म में बहुत सारे लोगों की जाने गई, इनोसेंट लोग, 3000 से ज्यादा लोग, अटैक जो हुआ था पेंटागन पे भी हुआ था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी हुआ था, उसमें लोग मारे गए. एंड यू विल फाइंड अमेरिका डिक्लेयर्ड व्हाट इज कॉल्ड वॉर ऑन टेरर. पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम बताई गई और ये बताया गया, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. इसी वक्त यूनाइटेड नेशंस ने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की, तो आपने देखा होगा कि उसी जमाने में 1991 के बाद बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट्स ने, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री और बाकी कंट्रीज ने भी, हमारे यहाँ तो 1987 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था टाडा वगैरह, बाकी कंट्रीज में भी आप देखिएगा, पाकिस्तान से लेकर के अमेरिका में पैट्रियट एक्ट और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के एक्ट्स बनाए गए, लॉज बनाए गए टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म. What was pointed out, Amnesty International or Human Rights Watch or other human rights organizations, they pointed out what is happening in the name of counter-terrorism. Innocent people are being targeted. पूरी दुनिया में innocent लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ultimately for killing one terrorist suspect, you will find 49 to 50 innocent people are being killed. That was the fact about the war on terror. Civilian population is being bombed. Carpet bombing, cluster bombing you will find on the civilian population. Many villages were wiped out. Missile attacks were there on, pharmaceutical company. For example, Al Shifa pharmaceutical factory was there in Sudan. And, American missile attack was there, which after that German ambassador to Sudan declared that because of the destruction of that particular factory, you will find 5 lakh children died in Sudan because of the shortage of medicine. You can find this kind of things were going on. So this was the reason that when United Nations adopted its counter-terrorism strategy, it pointed out, first of all, that there are certain inalienable human rights and they cannot be taken away. यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि कुछ राइट्स ऐसे हैं, ह्यूमन राइट, जिसको किसी भी सर्कमस्टांसेस में, व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस देयर, दे कैन नॉट बी टेकन अवे. फॉर एग्जांपल, राइट टू हैव अ फ्री एंड फेयर ट्रायल. फॉर एग्जांपल, right against discrimination. For example, right to life. These are the things, they cannot be taken away in whatever circumstances. And all the people, they must be given what is called due process of law should be there. They should be given the right to prove their innocence. They should be given right to consult their lawyer and all. Without trial, people should not be killed. First of all, you have to establish. These things United Nations also pointed out. Why? Because it was found that in the anti-terror operations, many innocent people were being killed. और यहाँ पे याद रखिए कि Carlos Marighella, he was a Brazilian revolutionary.
कार्लोस मारेगिला वाज अ ब्राजीलियन रेवोल्यूशनरी और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है मिनी मैनुअल ऑफ अर्बन गोरिल्लास. It is a book, that is consulted by most of the gorillas, Naxalites to others, you will find. It is mini manual of urban gorillas. उसमें he points out कि अगर कोई यानी आप गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाते हैं तो आप स्टेट पे यानी स्टेट एजेंसीज पे या लोगों पे ऐसे अटैक करेंगे कि यू हैव टू प्रोवोक स्टेट टू रिटेलिएट विथ एक्सेसिव फोर्स. यानी आप स्टेट को ऐसे यानी प्रोवोक कीजिए कि स्टेट जो है डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स करे. तो उससे क्या होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटी जिसमें चंद लोग इन्वॉल्व थे, दैट विल इंगरेज मासेस. जिस इलाके में, जिस लोकेलिटी में, जिस कम्युनिटी के लोगों को आप टारगेट करेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, कल्चरल और एथनिक कम्युनिटी, उसके इनोसेंट लोगों को आप टारगेट करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन दैट देयर विल बी मासिफिकेशन ऑफ द टेररिस्ट मूवमेंट. मींस मेनी मोर पीपल विल ज्वाइन and they will become guerrilla, they will fight, and this is a trap. He is saying this is a trap, और इस ट्रैप में आपको स्टेट को फंसाने की कोशिश करना है. अब देखिए स्टेट की प्रॉब्लम क्या होती है. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक होता है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ, तो एक नेशनल सेंटिमेंट था पूरी कंट्री में, दैट वी वांटेड टू हैव रिवेंज फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री. एक पूरा नेशनल सेंटिमेंट था, एंड गवर्नमेंट वाज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर. You are going to hit the target in a country which is a nuclear power. And that's why, India was under tremendous pressure, and you'll find what happened. You all find Operation Sindoor, etc. Today, there is a lot of discussion on this. So similarly, all the governments in the world, whenever there is a terrorist attack, you will find the governments are under tremendous pressure that they have to apprehend the perpetrators, because the states are responsible for protecting the life and liberty of the people. Property of the people. If the innocent people, going for honeymoon, innocent people going for, any kind of trip or tour, they are being targeted, that develop what is called a kind of anger at the national level. And that's why the states have to, react or respond. And the states are going to react and respond. You will find what happens, जैसे कहते हैं ना, जौ के साथ गेहूं भी और घुन भी पिस जाता, ultimately it happens. तो ultimately जब तो कार्लोस मैरेगिला ये बताता है कि इस तरह के जब आप ऑपरेशन करें तो आप स्टेट को प्रोवोक इतना कीजिए कि स्टेट एक्सेसिव फोर्स यूज करे, और उस एक्सेसिव फोर्स को जब स्टेट यूज करेगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल एनरेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ सिंपैथाइजर्स. दिस हैज हैपेंड विद नक्सल मूवमेंट इन आवर कंट्री. 1967 it was a movement that was started in a village near Darjeeling, Naxalbari, and that was a movement that traveled to around 12 states of the country. And once upon a time, the Home Ministry declared that 232 districts of India are Naxal affected districts. Why? Because many atrocities were also committed, while dealing with the people from tribal community or people from those who were declared as Naxals. One of the examples is Salva Judam, in which you will find that women were raped, and also you'll find that innocent people were targeted. So ultimately, when this is happening, in the name of counter-terrorism, you are trying to, violate the rights of the innocent people, then terrorism cannot be fight. So ultimately, what is to be there? ये कहा जाता है कि टेररिज्म को जब भी आप एड्रेस करेंगे तो टेररिज्म के रूट कॉजेस को आपको देखना होगा. टेररिज्म शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स रूट कॉजेस. और वन ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ टेररिज्म इज सेंस ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस. अगर आपके किसी भी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में, किसी कंट्री में, अगर ग्रॉस इनजस्टिस का सेंस लोगों में डेवलप होता है, किसी भी सेक्शन ऑफ पीपल में, so it means it will become a fertile breeding ground for terrorism, insurgency, militancy, etc. So that's why, a state or the government has to work in such a manner that sense of frustration, outrage, injustice is not developed in a segment of population. Again, poverty is one of the factors. If the people are poor, downtrodden, and they see that others are developed. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ आजकल बहुत बड़ा ऑपरेशन चला, आप दांतीवाड़ा बस्तर रीजन में आपने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए, और इन द नेम ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट नक्सलिज्म.
कभी आप जानने की कोशिश कीजिए कि यू नो व्हाट इज द पोजीशन इन दोज एरियाज ऑफ द पीपल, दोज स्पेशली द ट्राइबल कम्युनिटी दैट इज लिविंग ओवर देयर। अगर आप स्टडी करेंगे, बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की गई हैं। अरुंधति रॉय का एक आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, 30 पेज का है, और वो आउटलुक में एक स्पेशल इशू में आया था, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप बहुत सारी और भी स्टडी इसमें कंडक्ट की गई है। तो ये जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे इनफैंट मॉर्टेलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो पूरी कंट्री से सबसे ज्यादा है। स्टार्वेशन डेथ्स होती हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कोई हो जाए तो 50% केसेस में डेथ हो जाती है। 30-40 किलोमीटर उनको पैदल जाना होता है हॉस्पिटल के लिए, चारपाइयों पे रख करके वो ले जाते हैं और कंधे बदल बदल करके लोग वहां तक ले जाते हैं, आप पैदल चलते हुए। आप अंदाजा लगाइए, नो दिस इज द पोजीशन ओवर देयर। तो अल्टीमेटली, और वहां पे जो हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 70 साल के करीब हो रही है, तो वहां पे देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आमतौर पे 50 से 55 ईयर्स है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ओबेसिटी की है, ओवरवेट हम लोग हो रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहां पे एक वेल ग्रोन आपको जो ट्राइबल मिलेगा 45-50 kg का मिलेगा। इट मीन्स अंडरवेट, malnourished, all these are the problems, poverty and all. अब उस इलाके में these are the these tribal belts are also mineral rich areas. आप देखेंगे बहुत बड़ी यहाँ पे माइंस हैं, and ultimately because of mining what has happened that these people, those especially Adivasis, they have been living in the jungles in complete harmony with nature. ये complete harmony with nature के साथ रहते हुए आए, जड़ी बूटियों से अपना इलाज करते हैं। तो अल्टीमेटली जब हम माइनिंग के लिए, मिसाल फॉर एग्जांपल अ प्राइवेट कंपनी इज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनिंग इन दोज एरियाज, व्हाट विल हैपन? इन एरियाज में आप देखेंगे एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जांपल उनके वाटर कंटेमिनेट हो जाएंगे, एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी, फ्लोरा एंड फौना बर्बाद हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, वाटर सोर्सेस सब बर्बाद हो जाते हैं। अल्टीमेटली दीज थिंग्स आर देयर। So वो रेजिस्ट करते हैं। They don't understand sovereignty of the state because these are autonomous communities. They have been living with the tribal culture, tradition and values. वो स्टेट को कब देखते हैं? जब हम प्राइवेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भेजते हैं, और अल्टीमेटली वो कभी तीर कमान से फाइट करते हैं, फिर अल्टीमेटली आप देखिएगा कि वो फाइट करने लगते हैं गन बंदूक के साथ। तो अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुई और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हमारी आर्म फोर्सेस को भी उठाना पड़ा बिकॉज ऑफ द गोरिल्ला वॉरफेयर दैट दे वर वेजिंग। सो अल्टीमेटली इट मींस दैट देयर आर, जिसको कहते हैं सोशल इंटीग्रेशन अप्रोच, दैट वाज व्हाट वाज सजेस्टेड बाय द सिक्योरिटी एजेंसीज एज वेल एज बाय द एक्सपर्ट्स, दैट सोशल इंटीग्रेशन अप्रोच, दैट द पीपल इफ दे आर डिसग्रंटेड, if they are dissatisfied, if they have a sense of frustration, if they have a sense of injustice in their minds, then ultimately their genuine problem must be addressed. So that is a social integration approach. It means developmental work and other things, that should be there. So इसका मतलब ये होता है कि टेररिज्म को जब तक आप उसके रूट कॉजेस को नहीं देखेंगे, उसमें फिर एड्रेस नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है उसमें ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जिन कंट्रीज ने ह्यूमन राइट्स का कॉलोसल वायलेशन किया है, फ्लैग्रेंट वायलेशन किया है, यानी मिसिंग पीपल, अगर आप देखें लोग, एक स्टेट होता है जिसको हम लोग देखते हैं और एक होता है डीप स्टेट, यानी डीप स्टेट विच इज ऑलवेज इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं पाते। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, पूरी 193 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, सबका एक एस्पेक्ट होता है जिसको डीप स्टेट कहते हैं, जिसका काम होता है यानी मेनी पीपल आर टारगेटेड, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस आर टारगेटेड। तो ये जो डीप स्टेट होता है वो मेनी केसेस में डिसअपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का ऑलरेडी एक कन्वेंशन है जिसको कहते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट डिसअपीयरेंस, एनफोर्स डिसअपीयरेंस, तो उसको भी यानी एड्रेस करना होता है। तो इसका मतलब ये स्टेट जो वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को, कल्चरल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, इथनिक कम्युनिटीज के राइट्स, ट्राइबल राइट्स, इंडिजिनस पीपल के राइट्स, इन तमाम चीजों को, जितने भी डायमेंशन है राइट्स का, जब इसका वायलेशन होगा तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वहां पे टेररिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी ज्यादा पनपती है। इसका मतलब ये है कि इन नो केसेस, इसीलिए कोफी अन्नान ने आर्ग्यू किया था और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, that when we compromise with liberty to counter terrorism, what happens? Neither we get liberty nor
peace. He said that in no case liberty and freedom should be compromised. And that's why he said in no case you will find that the government agency should be allowed to violate the rights of the people. There are certain rights, they are inalienable. They are sacrosanct. They cannot be taken away in any kind of circumstances whatsoever. लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रख करके और अपने डिस्कशन को कंक्लूड करता हूं. लास्ट पॉइंट दो चीजें हैं आपके सामने. आपने अक्सर देखा होगा जो हम राइट्स का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आजकल, एक ग्रीन एक्टिविज्म पूरी दुनिया में पाया जाता है. यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो, पॉल्यूशन फ्री हो. उसमें क्या होता है, एक हम टीचर्स हैं इसलिए इस तरह की बात कर सकते हैं कि बेसिकली व्हेन वी आर ट्राइंग टू काउंटर when we are trying to address the issue of global warming and climate change, so don't you think that we all, from the class we belong to, we all have our ACs at our home. हमारे घर पे तो एयर कंडीशंस होते हैं, सबके घर में दो दो कम से कम एसी होंगे. And this AC, what it is doing, it is making our environment, our space very cozy and comfortable. And it is also, generating heat. So in the neighborhood, it is generating heat. So in that sense, we all, when we are using our AC cars, when we are using air conditioners at our home, it means we all have become what is called environmental terrorist. यानी हम जो एसी यूज कर रहे हैं उसका फायदा तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अगर बगल में कोई हट है, हमारे नेबरहुड में कोई गरीब आदमी रह रहा है जो एसी यूज नहीं कर रहा, तो हमारे स्पेस को कंफर्टेबल करने के लिए उसको हीट बर्दाश्त करना पड़ रहा है. हो सकता है उसका टीन शेड हो, जो हमारे जो एसी जो हीट जनरेट कर रहा है उससे बहुत ज्यादा ये हो रहा. तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे जब हमारे पास इतनी बड़ी वेहिकुलर पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड में, सड़कों पे कारें ज्यादा नजर आती हैं, इंसान पैदल कम नजर आता है, तो अल्टीमेटली और सब एसी कार्स, सो ग्लोबल वार्मिंग विल बी देयर, क्लाइमेट चेंज विल बी देयर. एंड लास्टली यू विल फाइंड दैट पॉवर्टी का इश्यू जो है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद टेररिज्म. पॉवर्टी के इश्यू को, डेप्राइवेशन के इश्यू को, सोशल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, इसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे टेररिज्म से हम कभी भी उसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी कहानी है जो आप सबको याद रखनी चाहिए, एंड दैट इज फॉर सेंसिटाइजेशन. व्हाई पॉवर्टी or exploitation of the laborers, workers, that always lead to this kind of nationalism, terrorism, insurgency, etc. वो है कि एक मजदूर से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मजदूर ने कहा लेबर ने कि हमारे पास मेरे 3 बच्चे हैं. तो क्या बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? तो उसने कहा हमारा एक बच्चा इतना बड़ा है, एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा इतना बड़ा है. तो कहा कि बच्चों को, सामने वाला हंसा और बोला बच्चों को ऐसे नहीं बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, आप ऐसे बता रहे हैं. तो उसने कहा कि जब मैं काम करने जाता हूं तो मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब मैं काम करके वापस आता हूं तो मेरे बच्चे सो चुके होते हैं. तो मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही देखा है जैसे बता रहा हूं. हम जब अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनके लिए गिफ्ट ला रहे होते हैं, तो वो जो डेली वेज अर्नर जो अपने गांव से ट्रैवल करके दिल्ली जाता है, एक लोकल ट्रेन में बैठ करके सुबह 4 बजे घर से निकलता है और वापस आते आते उसको रात के 10 बज जाते हैं, तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए. और वो देखता है कि स्काई स्क्रैपर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एसी कार है, एयर कंडीशन चैम्बर्स हैं जिसमें लोग बैठे हुए हैं, और एक तरफ वो धक्के खा रहा है. तो ये जो ग्रॉस इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो सोसाइटी में होती है, ये किसी भी कंट्री के लिए, कुछ दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी नहीं होती. तो अल्टीमेटली व्हेन वी आर गोइंग टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, ये बहुत एकेडमिक डिस्कशन है, बहुत कॉमन सेंसिकल भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ कॉजेज ऐसे नजर आएंगे जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली दीज आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर इशू. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू. आई हैव ऑलरेडी रिटन अ बुक on international terrorism and violence, a human rights perspective, that must be available in your seminar library of the HRDC, and you can also find in your libraries as well. And I have also papers on, for example, अगर आप मेरा नाम टाइप करेंगे तो कुछ आपको जैसे terrorism a definitional dilemma, यानी contemporary discourse on terrorism a definitional dilemma, इस टाइप के
मेरे आर्टिकल मिल जाएंगे. टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म issues and challenges. These are the issues that these are available in public domain. So you can find and you can read them. Now house is open or the class is open for discussion. 10 minutes are already left. No, more time is there. I think कितना टाइम है आपका? आधा घंटा है ना? चलिए डिस्कशन कर सकते हैं. 40 minutes we have. अच्छा, so let me conclude. I'll take another 10 minutes. I forgot. I'll take just another 10 minutes to wind up, and then house will be open for discussion. You know, when we are discussing this aspect of terrorism, तो वायलेंस जो होता है ना, वायलेंस जिसको कहते हैं, भाई टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है? टेररिज्म का एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि एन एक्ट ऑफ वायलेंस committed with political objective or politically motivated violence against innocent people is terrorism. Simple definition हो सकता है. Just simple definition. Politically motivated violence against innocent people is terrorism. अब जो डंडी कहाँ मारते हैं डेफिनेशन में, what happens that when the governments are trying to define terrorism, they will identify actors. आपने देखा इस एक लाइन के डेफिनेशन में politically violence, politically motivated violence against innocent people is terrorism, इसमें एक्टर इन्वॉल्व नहीं है. बट जो गवर्नमेंट्स जब डिफाइन करेंगे, सिक्योरिटी एजेंसी जब आइडेंटिफाई करेंगी, तो वो कहेंगी कि politically motivated violence by is very important, that who is committing this violence, that will be important for them. अभय साहब, आप अपना माइक स्विच ऑफ कर लें. अभय साहब, मिस्टर अभय, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. आप अपना म्यूट कर ले माइक. ऑल पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट कर लीजिए माइक. मदर साहब, आप कर सकते हैं अपने पास से. आप पार्टिसिपेंट्स को आप म्यूट कर दे, तब फिर एनीवेज. तो ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल इज टेररिज्म, इसका मतलब जानते हैं क्या है? टेररिज्म जो है वो सारे एक्ट ऑफ वायलेंस को टेररिज्म आप नहीं कह सकते. मिसाल के तौर पे अगर कोई डाकू है, डाका डालने जाता है, कोई गैंग है और उससे लोगों ने रेजिस्ट किया, उसने लोगों को मार दिया वहां पे, सो दैट इज नॉट टेररिज्म. कोई क्रिमिनल, हार्डेंड क्रिमिनल है, if he is committing the crimes, heinous crime like rapes and murders, or and if there is no political objective, it is not terrorism. Terrorism के लिए the violence must be politically motivated, ideologically motivated. So ultimately जो objective है, कोई political objective achieve करना चाहते हैं जिस violence से या threat of violence से, उसको हम terrorism कहते हैं. इसलिए ऑर्डिनरी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उससे आपको टेररिज्म को डिफरेंशिएट करना होगा. सो द पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोइंग द पॉलिटिकल मोटिवेटेड वायलेंस, एनीबडी कैन बी इन्वॉल्व. इट मे बी एन इंडिविजुअल, इट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन, और इट मे बी द पीपल इन यूनिफॉर्म फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो अल्टीमेटली अगर आप देखें, अगर मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल आर्मी ऑफ अ कंट्री, police of a state, or the intelligence agencies of the states, if they are responsible for killing innocent people to achieve political objective, that is also terrorism. And that's why Bisoni is saying that there is what we call state terrorism as well as non-state terrorism. Both are important. And that's why, you cannot ignore state terrorism because it has been responsible for killing 70 million people in 100 years. But doing research on state terrorism is very, very difficult because how deep state operates, we don't know. We cannot get access to those kind of information from any state of the world. Because deep state is always operating with secrecy, that you are in the name of national security or in the name of many other things. Those information cannot be shared, and this is the reason it becomes very difficult to work on state terrorism. So therefore, when we are trying to understand, this act of terror and terrorism, we must be, very much aware about it. Secondly, you will find that in our own country, for example, there are many issues that we are dealing with. For example, caste discrimination is one of the issues that we have been dealing with in our country. For example, the practice of untouchability. You must have seen the practice of untouchability in the country.
Can you imagine our own people, they are being deprived of their own rights and the animal existence they were having in this country. Our own people, they were not allowed to enter into our own villages. They were not allowed to draw water from the wells and the ponds that we were having. So ultimately, when this kind of caste discrimination will be there, communism, casteism, discrimination, social exclusion, they all are causes of terrorism. So while dealing with the act of terrorism or while dealing with the counter-terrorism, we must take into account all these issues. Then only we can have a holistic approach. Vijapur Sahab has also joined. I think he'll also add something. And now the class will be open for discussion. Thank you very much. Professor Mohib Saab. Friends, this is a very important theme because the world is today affected greatly by terrorist activities. कभी-कभी एक ऐसे फील्ड में आप टेररिज्म देखेंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है. कहा यह जाता है कि सबसे पुराना टेररिस्ट अटैक दुनिया में, हर कंट्री में, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में, आदमी का टेररिज्म अगेंस्ट वुमेन. वुमेन हैव बीन टेरराइज्ड फॉर सेंचुरीज. दिस वी डोंट स्टडी. टेररिज्म हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इज टेररिज्म, बट टेररिज्म कैन बी एनीथिंग. देखिए, इन्होंने बताया, कुछ डेफिनेशंस बताया और कहा कि officially agreed definition of terrorism does not exist. कभी कभी ये फायदेमंद होता है कि ऑफिशियल डेफिनेशन होनी नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी इंडिया में लाएं कि हिंदूज आर इन मेजॉरिटी एंड मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, तो फिर कश्मीर के सिचुएशन को कैसा आप देखेंगे? बिकॉज इन कश्मीर हिंदूज आर इन माइनॉरिटी. यानी कहने का मतलब ये है कि कभी कभी डेफिनेशन का न होना भी बड़ा फायदेमंद होता है. बिकॉज यू कैन इंटरप्रेट टू सूट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. आपके हित में, समाज के हित में, देश के हित में जो होगा उसको आप उस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. बिकॉज ये जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना तो 51 कंट्रीज मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग इंडिया. टुडे वी हैव 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. 100 से ज्यादा नेशंस कहां से आ गए? दे एमर्ज फ्रॉम डीकोलोनाइजेशन. एंड हाउ डीकोलोनाइजेशन टुक प्लेस? डीकोलोनाइजेशन टुक प्लेस through violence. It was a war of independence. It was a war to reaffirm the most fundamental right, that is self-determination of peoples. यानी आपको किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, किस तरह का बजट चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे. दूसरा देश डिसाइड नहीं करेगा. इंडिया पाकिस्तान की वार में आप पीस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, वार 10 दिन चलाना चाहते हैं, 15 दिन चलाना चाहते हैं, तो इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइड करना चाहिए. व्हाइट हाउस डिसाइड नहीं करेगा. यहाँ पे क्या हो गया? व्हाइट हाउस डिसाइड किया. सेल्फ डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लॉ में. उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस के कई रेजोल्यूशंस पास हुए जिसमें यह कहा गया, वायलेंस अगेंस्ट imperial masters can be justified in the name of self-determination of peoples. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी. ब्लैक्स को ये राइट्स दिए गए, यूज ऑल मीन्स इंक्लूडिंग वेपन्स for liberating yourself, for having the majority rule, or for having multi-racial democratic system in the state. तो तब जाके 1994 में साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफिशियल पॉलिसी थी, ब्लैक्स वर फाइटिंग अगेंस्ट इक्वालिटी.
अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। जिस तरह से हमारे कास्ट सिस्टम में दलितों के घर बाहर होते हैं, गांव के बाहर, दे हैव सेपरेट कॉलोनीज। सिमिलरली इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1950 टू 1994 ब्लैक्स के कॉलोनीज अलग, व्हाइट के कॉलोनीज अलग, व्हाइट के कंपार्टमेंट्स अलग, व्हाइट के रेस्टोरेंट्स अलग, व्हाइट के स्कूल्स अलग, ब्लैक के स्कूल अलग। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, ये महात्मा कैसे बने? ये महात्मा इसलिए बने कि अपनी जीवन के 21 ईयर्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारा। साउथ अफ्रीका में इक्वालिटी के लिए फाइट किया, इनजस्टिस के लिए फाइट किया। उनको ब्रिटिश सरकार या जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी जो सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, he was treated as a terrorist, but he cannot be considered as a terrorist because he fought with the weapon of non-violence and the weapon of law. Law और non-violence को उन्होंने weapon बनाया, तो साउथ अफ्रीका got liberated after a long struggle. देखिए नेल्सन मंडेला 27 years जेल में थे। दुनिया के अकेले लीडर हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो स्टेट टेररिज्म के खिलाफ, क्योंकि अभी इस लेक्चर में आपने सुना स्टेट टेररिज्म होता है। एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर साउथ अफ्रीका में, सोतो इंसिडेंट था। स्कूल के बच्चे अपोज कर रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। यू नो द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, रेसिस्ट गवर्नमेंट, एरोप्लेन्स, लो फ्लाइंग एरोप्लेन ला के उनको धमका रहे थे, स्टूडेंट को स्केयर कर रहे थे और ओपन फायरिंग किया। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डाइड। बच्चे तो बच्चे हैं, यू कैन नॉट किल चिल्ड्रन, वुमेन इन द स्टेट ऑफ वार, तो दे आर प्रोटेक्टेड पीपल अंडर से लॉज ऑफ वार। लेकिन 27 साल जेल में रहने के बाद उनको कुछ कैंसर वांसर भी हो गया था। अगर वो मर जाते तो फिर वहाँ बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होता, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, या 30% जो वाइट हैं उसमें से 20% को वहाँ के ब्लैक्स मार देते। उनको बेस्ट इलाज दिया गया, इंग्लैंड ले गए और उनको जिंदा रखा गया। जिंदा रखना वाज मोर यूजफुल फॉर द अपार्थाइड regime, फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। For self-determination of peoples also you can use, जैसा बताया गया आपको कि एक पर्पस होनी चाहिए, political objectives, you have to achieve some political objectives that can be justified। अगर कोई political objective नहीं है तो फिर वो तो भाई गुंडागर्दी हो गई। और जैसा अमेरिका में आए दिन शूटिंग्स होते हैं, because there everybody has guns. Right to have a gun is freely available in United States of America. So gun culture is there. So that is not terrorism unless you have certain objectives, and good causes, good objectives like self determination of people. हमारी अपनी हुकूमत होगी, ब्रिटिश गवर्नर नहीं होगा हमारे यहाँ, हम कॉलोनी नहीं रहेंगे। You know, for that you can use violence to bring say self determination, और फॉर ह्यूमन राइट्स एक ये भी बताया गया आपको कि भाई जहाँ पे ह्यूमन राइट्स एट ए वाइड स्केल वायलेट होते हैं तो दैट गिव्स बर्थ टू दिस इनफेमस फेनोमेनन कॉल्ड टेररिज्म। आप अगर सारे लोगों को राइट्स देंगे, कभी कभी वो टेररिज्म रेवोल्यूशन की शक्ल भी लेता है। जो प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आया सोवियत यूनियन में, सोवियत रशिया में 1917 में, उसको रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, बट इट वाज ए वायलेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट वाज ए वायलेंस अगेंस्ट टायरेंट, डिक्टेटर। गिलोटीन आपने देखा, गिलोटीन पे रख रख के सबको सर और बॉडी को अलग कर दिया, सर को बॉडी से अलग कर दिया। You know, if you can see some videos available on French Revolution,
वो तो पूरा दिल दहक जाता है देख के. बट दैट वाज फॉर गुड कॉज, फॉर द कॉज ऑफ एस्टेब्लिशिंग a रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल, ह्यूमन राइट्स टू ऑल द पीपल. यानी जब तक आपके कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो दैट टेररिस्ट एक्टिविटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड. अगर आप चलते चलते ट्रेन में किसी को मार दिए तो दैट इज नॉट टेररिज्म. टेररिस्ट्स आर आल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड. टेररिस्ट्स आर सपोज टू उनके लिए भी लॉज ऑफ वॉर हैं. 1977 में जेनेवा के कन्वेंशंस प्रोटोकॉल आए, उसमें दे आर सपोज टू किल ओनली पीपल इन यूनिफॉर्म, नॉट सिविलियंस, not ordinary people, not those who are not fighting. यानी आप जो फाइट कर रहे हैं, पुलिस है, जैसा स्टेट की पुलिस है, आर्मी है, टेररिस्ट शुड अटैक ओनली देम. ये जो पहलगाम में जो हुआ, ये ऑर्डिनरी टूरिस्ट पे हुआ. और जैसा कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, they were asking the religion of the people. You can't ask the religion and kill the people. First of all, you cannot kill anybody. If somebody is Muslim and somebody is Hindu, then you are killing only Hindus. You are not killing, Muslims. You are killing only men. You are not killing women. So they had their own purpose. They wanted that there should be disturbance in India. कम्युनल डिवाइड शुड बी इन इंडिया. पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट बेवकूफ हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाएं. ऑलरेडी हमारे अंदर के लोग ही लड़ाई लगा रहे हैं, बाहर के लोग आके लड़ाई लगाने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर आउटसाइडर्स. वी शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट not only terrorism, also against those political parties. या थोड़ा मेंटेन हो तो है बड़का वो आवत भाई बात मत करिए भाई. कागज ना जाए. रीता सिंह जी, आप लोग जाइए, जाना हो भैया देख लेंगे, जाइए. माइक बंद कर लीजिए रीचा जी, माइक बंद कर लीजिए. देखिए ये डिजिटल में ये प्रॉब्लम होता है. रीचा जी माइक बंद कीजिए. रीचा जी माइक बंद. एडमिन भी ऑफ कर सकते हैं. एडमिन को कहिए म्यूट करें. हमारे एडमिन भी कहीं गए होंगे. रीचा जी माइक ऑफ कीजिए. देखिए गलती से अगर अनम्यूट हो गया तो ठीक है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू अनम्यूट योर माइक. डिजिटल के अपने प्रॉब्लम्स हैं. आजकल टेररिज्म आल्सो हैज टेकन डिजिटल शेप. आप वहां पे फिजिकली नहीं जाएंगे, आपके मिसाइल जाएंगे. द कंसेप्ट ऑफ वार आल्सो हैज चेंज्ड. हम एक लेक्चर इसमें आपके सेशन में रखे हैं, द चेंजिंग नेचर ऑफ वार. ताकि आजकल वार आर्मी के जरिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, आइडियाज, दिमाग, जैसे हमने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, पिछले 80 इयर्स में, इन द लास्ट 80 इयर्स, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट एक सुपर पावर को बता के उसको अटैक किया गया. यूनाइटेड स्टेट्स इज द सुपर पावर नाउअडेज, द लोन सुपर पावर. ईरान ने उनको बता दिया कि भैया हम आपके बेसिस जो मिडिल ईस्ट में हम उस पर अटैक कर रहे हैं. एंड ट्रंप ने थैंक यू कहा खोमेनी को, थैंक यू मिस्टर खोमेनी, क्योंकि तब तक वहां से लोगों को निकाल लिया गया. द बेसिस को अटैक किया, उनका प्रेजेंस को अटैक किया. व्हाई शुड a country which is far away should meddle in the affairs of West Asia, Middle East, India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान अपने आप सॉल्व कर लेंगे अपना जो भी प्रॉब्लम है. और दोनों कंट्रीज ने ये डिसाइड किया 1972 में कि कश्मीर इश्यू इज ए बायलैटरल इशू. बायलैटरली इट विल बी सेटल्ड. थर्ड पार्टी मीडिएशन is not allowed, and we consider in India
that Kashmir is an integral part of India. It is non-negotiable. It is our domestic matter. It is not an international matter. वैसे वो इंटरनेशनल बन गया था जब नेहरू जी कश्मीर का क्वेश्चन यूएन में ले गए, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल हो गया था. कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ हैड मेड इंटरनेशनल. अब बीजेपी ने भी इंटरनेशनल बना दिया उसको, ट्रम्प का मीडिएशन एक्सेप्ट करके. तो बोथ द पार्टीज, कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी, आर गिल्टी of making Kashmir issue as international, and international institution like UN says you have to settle your disputes through negotiation, bargain, reconciliation, arbitration, and through diplomacy, not through bombs, not through missiles, not through fighting, नॉट थ्रू किलिंग. क्योंकि उसमें आपका दोनों का नुकसान है. वार में, आजकल की वार ऐसी है कि कोई भी बचेगा नहीं. अगर न्यूक्लियर वार हो जाती है, अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होता है, तो सारे लोग खत्म हो जाएंगे. आइंस्टाइन, जो ग्रेट साइंटिस्ट है, नोबेल लॉरिएट आइंस्टाइन, ने कहा अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती है, 80 साल से हुई नहीं, अगर होती है तो fourth world war will be fought between sticks and stones, because there will be no human beings. All human beings will be wiped out because of nuclear radiation. तो fourth world war देखने के लिए कोई जिंदा नहीं रहेगा. That is what Einstein long ago said. तो हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इस कंडीशन में आ गए हैं. हमारा जो वेपन्स हैं, इतने ज्यादा वेपन्स हम लोग अक्यूमुलेट किए. जैसा रिच आदमी बड़ा खुश होता है अपना बैंक बैलेंस देख के, वैसा आजकल स्टेट्स अपना स्टॉक पाइल, हमारे पास कितने वेपन्स हैं, कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने बॉम्ब्स हैं, वो देख के खुश होता है. मिलिट्री बजट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, इट इज मैं डेटा आपको देता हूं, मेरे पास है. उसका 1% जितना मिलिट्री बजट, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उसका 1% भी वी आर नॉट स्पेंडिंग ऑन पीस, ऑन डेवलपमेंट. अगर एक साल का मिलिट्री बजट लेके, ग्लोबल मिलिट्री बजट, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसको लेके अगर आप यूनाइटेड नेशंस को देंगे, तो यूनाइटेड नेशंस 1000 साल तक बगैर पैसों के चलेगा. That much we are spending. किस लिए खर्च कर रहे हैं? वार के लिए. और आजकल की वार कैसी होगी? इट इज डिस्क्राइब्ड एज मैड, MAD. मैड मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. न आप जिंदा रहेंगे, न हम जिंदा रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे. दैट इज मैड. मैड मीन्स म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. हम आज उस स्थिति में हैं. इसीलिए वार is no solution to the problems. You have to have give and take, reconciliation, compromise जिसको कहते हैं. अगर मियाँ बीवी दोनों लड़ने पे आ जाएं, तो हर घर में एक सोनम नजर आएगी, सोनम रघुवंशी. You have to adjust with your partner, even if you have great differences. अनलेस यू, देखिए ताली कहते हैं ना, दो हाथों से नहीं बजती. अब वो मिस्टर राजा रघुवंशी भी इतने सीधे भी वो भी नहीं होनी चाहिए थे. वन हैज टू बी स्मार्ट एनफ इन दिस वर्ल्ड. आजकल जो स्मार्ट है वही जिंदा रहता है. उसको कैसा पता नहीं चला कि भाई बीवी उसके खिलाफ षड्यंत्र बना रही है. कह रहे हैं कि गहने पहन, 10 लाख का चेन पहन के आई है. हनीमून पे कोई आभूषण पहन के थोड़ी जाता है. अब आप बताइए. तो ही वॉज सो सिंपल. तो सच सिंपल पीपल will land up in trouble. So you have to be smart, you have to be cautious. Immediately, देखिए ऐसा होता है कि you should not immediately trust the new person. It will take time to understand the person. And also, this incident has brought to limelight
many questions whether parents are failing to perform their duties towards their children, whether children's views should be taken or not. क्योंकि देखिए, जब आपके अपने व्यूज, अपने ख्यालात कि आप कहाँ शादी करना चाहते हैं, अगर आप नहीं पूछेंगे लड़का और लड़की से, तो then they will, resort to terrorist activities like violence. So that is why you have to listen to people. This is an age of human rights. Human beings should be asked what are their problems, what are their needs, what are their preferences, whom you want to marry. You have no right to kill anybody else. Forget about whether it is your husband, your wife. You cannot kill anybody. You cannot kill even enemy. You have no right to deny right to life, because that is a gift from nature. That is a gift from God. Because human rights, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले भी ह्यूमन राइट्स हैं. These are given by God, the creator. The creator has given certain rights which are prior to the establishment of state. State तो बाद में बना, पहले एडम एंड यू आए, छोटा सा गांव बना, शहर बना. Rights and duties are actually two sides of the same coin. अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं. One's right becomes a duty for others. ड्यूटी का नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में आए हैं, ये इसलिए भी आए हुए हैं कि देयर आर वी आर गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू राइट्स. वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू ड्यूटीज आल्सो. तो इंदिरा गांधी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए, लाइक रिस्पेक्टिंग national security, Constitution of India, secular values, protecting environment. ये हमारी ड्यूटीज हैं. प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, जब हम फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में बात कर रहे थे ग्रुप राइट्स की, ये राइट टू पीस इज ए ग्रुप राइट. अगर वार नहीं होगा, शांति रहेगी, तो सबको फायदा होगा. कलेक्टिवली एवरीबडी विल प्रॉस्पेर. इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, डेवलपमेंट होगा. अगर वार होगा तो वहां पे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा. राइट टू पीस हैज emerged as a very important collective right and a third generation right and a group right and a collective right. लेकिन पीस किसी के पास नहीं है. सटायरिकली ये कहा जाता है कि दो लोगों के पास पीस है. दुनिया में दो ही व्यक्ति हैं जिनको पीस मिला हुआ है या पीसफुली हैं. आप जानना चाहेंगे कि वो दो लोग कौन है? क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई पहला व्यक्ति वो है जो अभी पैदा नहीं हुआ, और दूसरा व्यक्ति वो है जो ऑलरेडी मर गया. उन्हीं के पास पीस है. तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड. वी हैव टू टॉक अबाउट पीस इन द सोसाइटी. लोगों के रहते हुए पीस की बात करना. अगर आप पीस की बात करेंगे, टेररिज्म भी खत्म होगा, वायलेंस भी खत्म होगा. हर बंदे को उसका ड्यू मिलना चाहिए. एक अभी आई विल जस्ट कंप्लीट माय पॉइंट. एक बात आई थी, इनइक्वालिटी, ग्रॉस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल लीड टू टेररिज्म. एक रीजन, एक कॉज. आईएलओ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. देखिए कितना बड़ा बेहतरीन सेंटेंस है. इनइक्वालिटी एनीवेयर, कहीं भी इनइक्वालिटी हो, इट इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. हर जगह जहां पे शांति है उसको खतरा है. अब उसको कैसे खत्म किया जाए? इनइक्वालिटी को कैसे खत्म किया जाए? यू हैव टू हैव सोशलिस्टिक मेजर्स. जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म है, मिनिमम वेजेस हैं, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा 100 दिन का है, कम से कम 100 दिन तो आपको खाने पीने को मिल रहा है. these kind of free education, free health facilities,
इस तरह के अगर आप देंगे तो लोग रेबेल नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल डू नॉट हैव मनी टू गो टू प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अभी 2022 की एक रिपोर्ट आई, ऑक्सफार्म की रिपोर्ट आई ग्लोबल इनइक्वालिटी पे। स्पेशली आई वाज रीडिंग द इंडिया चैप्टर। आपको मैं एक उसका कंक्लूजन बताता हूं, आप घबरा जाएंगे कंक्लूजन सुन के। मिस्टर अडानी, गौतम अडानी इज हैविंग सो मच वेल्थ। ये दिस इज बिफोर हिंडनबर्ग रिपोर्ट एंड अभी तो वो जब नंबर 2 थे, दुनिया के नंबर 2 थे। Adani's total assets and total wealth is 4 times larger than the gross GDP of Nepal. इसका मतलब हुआ जितनी नेपाल का जीडीपी है उसके 4 गुना वेल्थ अडानी के पास है। मतलब 4 नेपाल खरीद सकता है अडानी। If that kind of inequality is existing, इंडिया में बिलियनायर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिलियनायर्स का नंबर बढ़ रहा है, गरीब लोग ज्यादा होते जा रहे हैं। तो एनी टाइम एनी रेवोल्यूशन में कम, आप उसको कहेंगे टेररिज्म, लोग कहेंगे नो इट इज आवर राइट, वी हैव इक्वल राइट टू द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, व्हाई ओनली फ्यू पीपल शुड prosper, become rich, accumulate wealth. So these are the issues, friends. Thank you very much. I just wanted to give some more perspectives. अभी भी हमारे पास कितने 7 मिनट हैं, 2 बजे हमारा सेशन खत्म होगा। 7 मिनट में अगर कोई पार्टिसिपेंट के पास कोई नया आइडिया है या कोई कमेंट है, हाउ टू कंटेन टेररिज्म, इट इज $1 million क्वेश्चन। अगर आप इसका जवाब देंगे तो हम आपको $1 million तो नहीं देंगे, million thanks तो कहेंगे। If anybody has a suggestion how to control terrorist activities in the state, 1967 में नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था, आज तक खत्म नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा कि भैया वो क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन से खत्म हो जाएगा, टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, नक्सलिज्म भी खत्म हो जाएगा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। डीमोनेटाइजेशन में हम खुद खत्म हो गए, टेररिज्म नहीं खत्म हुआ। एनीवन हु हैज सम गुड थॉट, गुड कमेंट, गुड ऑब्जर्वेशन, गुड एनालिसिस, हाउ टू कंटेन, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रेगुलेट। देखिए, स्टेट को रेगुलेट करना आसान है, नॉन स्टेट टेररिस्ट ग्रुप को कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसा स्टेट, इफ से स्टेट बिकम्स ए एजेंट ऑफ टेररिज्म, you can deny visa for other countries, can deny visa to those people, those who बस are बेटा खत्म हो रहा है, बस चलते हैं, बज्जी चलना। ये बाबा सारी से बोल दो, बाबा से तो नहीं कर, देखो बज्जी तो नहीं चलेगा। प्लीज म्यूट योर माइक मैम। मैडम लोग बड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सर अब क्वेश्चन का सेशन भी कराइए। हाँ, वही हम चाहते थे, वही क्वेश्चंस। अगर ऑब्जर्वेशंस नहीं है तो क्वेश्चंस पूछिएगा। वी बोथ बहुत लोगों ने हाथ उठाया है सर। यस, वन बाय वन। डॉक्टर निखिलेश जी हैं शायद इनका नाम। Yes, sir. Namaskar, sir. Sir, I have a suggestion at the topic you say that how to contain terrorism. That I says the education system, particularly in India or the developing nations, is not up to the level that we may understand what really the terrorism is and how it is emerging in the country or anywhere. When we will come to understand, not we means everyone, including our politicians, our officials, bureaucrats, and the individuals. So it is a long process, it will take time, but government has to check out some plan for this, and they must educate people. Until they are not educated,
we cannot, still then it is not possible to completely eradicate terrorism, but we can contain it, we can sustain it for, we can decrease in some degree. And now I have a question, sir. Hmm. When we talk about national security, how should countries, especially democratic countries, balance national security with individual freedom while combating terrorism? And the Okay. laws that are devised, if I talk about in reference to our country, India, the laws which are devised to combat terrorists, how they are misused and how they are impacting our civil liberty. Okay, okay. Very good question. And one very good suggestion was given by Dr. Nikhilesh ji. Education can be one of the tools to control and contain terrorism. अगर लोगों को पढ़ाई लिखाई दें और अच्छा जॉब मिले, अच्छी शिक्षा मिले, not how to read and write, but really one should be educated in the real sense of the term. उसके बाद इस सुझाव के बाद उनका सवाल था कि नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करें। इसको रिजॉल्व करना बहुत आसान है। दैट इज national security has not been defined. What is national security? It's a vague concept. आप नेशन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अगर नेशन में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ कमेंट्स दें तो दैट इज नॉट अगेंस्ट द नेशन। देखिए, कल हमारा एक लेक्चर रहेगा, एक रिसोर्स पर्सन बड़ा अच्छा बताएंगे, नेशनलिज्म एंड फेडरलिज्म पे कल लेक्चर है 12:30 से 2 बजे तक। This entire idea of nationalism is a Western concept. Nationalism grows when people of same religion, same culture, same language, same historical process feel a sense of oneness and wants to have a separate state. हमारा जो देश है, it is not a nation state, it is a multinational state. जब इंडिया आजाद हुआ था तो 550 प्रिंसली स्टेट्स थे यहाँ पर। कश्मीर was one of them, princely state. Only 2/3 of India was under British rule. 1/3 of India had princely states. जैसा ये रामपुर है, छोटा सा शहर है यूपी में, वेस्टर्न यूपी में। रामपुर very small state, but it was a princely state. वहां के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे खुर्शीद आलम खान, ये आजकल जो सलमान खुर्शीद है उनके फादर, वो प्रिंसली स्टेट में मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट। और पूरे स्टेट में, रामपुर स्टेट में कितनी बसें थी? 4 बसें थी। 4 बसों के मिनिस्टर। तो इंडिया में जब इंडिया एमर्ज हुआ तो लोगों ने कहा भैया स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। कन्नड़ा वाले कर्नाटक, तमिल वाले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मलयाली बोलने वाले केरला, इस और एक लार्जर बॉम्बे स्टेट था, उसको बाइफरकेट करके गुजरात और बॉम्बे बना। तो नेशनलिज्म को आप अप्लाई यहां पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकार की नॉन गवर्नेंस की क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप देशद्रोही या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है ये नहीं कह सकते हैं। यू हैव टू सी द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन यूरोप। हमारी डेमोक्रेसी अभी भी वीक है, कमजोर है। 1 नेशन, 1 आधार कार्ड, 1 टैक्स, 1 इलेक्शन। अभी लास्ट मंथ 1 नेशन 1 हस्बैंड की बात भी हो रही थी। सिंदूर बांटने का कार्यक्रम था, उस पर आपत्ति हो गई तो फिर वो बीजेपी बैकफुट पे चली गई। यू सी, it is a nation of diversity. India is diverse nation, culturally, linguistically.
Why should Hindi be the lone official language of Government of India? क्योंकि I belong to Karnataka. I am a South Indian, and we are very much comfortable with English. In fact, आजकल गरीब से गरीब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। एक तो वहां अच्छी तालीम है, अच्छी एजुकेशन है, एंड योर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी हार्टलैंड में ही जॉब मिलेगा, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे। यू नो, साउथ इंडियंस fought for retaining English as the one of the two official languages of Government of India. एक हिंदी है, एक हिंदी है, ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी इज ए राजभाषा। राजभाषा मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये हिंदी बेल्ट वाले क्या कहते हैं, भैया ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तमिलनाडु कहता है कि हमारी हिंदी से भी पुरानी है हमारी लैंग्वेज, तो आप तमिल क्यों नहीं पढ़ते हैं? यू नो, दीज आर द इश्यूज। तो इसमें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंग्लिश इज ए न्यूट्रल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज, इसको रख लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। इट इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन ऑल द स्टेट्स। तो यू कैन सॉल्व द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। You have to balance the requirements of national security with civil liberties. Civil liberties को आप curtail नहीं कर सकते हैं। Yes, any other question, please? Our time is almost over. We have exceeded by 2 minutes. सर मुझे लगता है कि 10 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम होना चाहिए। हम लोगों के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। Okay. What I will do is, मैं कल से सारे रिसोर्स पर्सन्स को कहता हूँ कि 1 घंटा 10 मिनट वो लेक्चर दे दें और 20 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स। तो जब मैं रिसोर्स पर्सन्स को इंट्रोड्यूस करूंगा कल से, उनको ये हिदायत दी जाएगी, इट विल बी एन इंस्ट्रक्शन फॉर देम टू स्पीक। सर मैंने आधा घंटा दिया था इनको। सर मैंने आधा घंटा दिया था। आज तो आपने ज्यादा दिया। मे बी बिकॉज ऑफ लिटिल बिट कंफ्यूजन, अदरवाइज आई नो यू आर ए स्पीकर। हमने इसीलिए आपको आधा घंटा वैसे भी सर देता हूँ डिस्कशन के लिए। आधा घंटा all teachers आधा are घंटा there. इज मैक्सिमम। So आधा घंटा इज they have मैक्सिमम। many perspectives. All teachers are there. They have many Yes, perspectives. आधा So घंटा you also learn from them. मिनिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। क्योंकि रिसोर्स पर्सन को ऑनरियम दिया जाता है, उनका वो अपना तैयारी करके आए, अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आए और अपना ऑनरियम को हलाल करें। सर नेक्स्ट सेशन के बारे में बता देते तो अच्छा रहता। नेक्स्ट सेशन के बारे में बता। किसके बारे में? देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना होगा तो यू कैन मेल मी। आपके पास ईमेल आईडी होगा। आई एम वेरी सॉरी आई कुड नॉट टेक योर क्वेश्चन। तो सर को भी अगर आप मेल करेंगे तो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, या आप मुझे कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ऐसा है कि इस सेशन के बाद में भी, इस कोर्स के खत्म होने के बाद भी आप लोग हम दोनों से टच में रह सकते हैं। यू कैन ऑलवेज सेंड योर क्वेरी एंड वी विल ट्राई टू आंसर। दिस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज शुड कंटिन्यू फॉर होल लाइफ। यस सर, एक छोटा सा सवाल था सर। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर एक्चुअली बात ऐसा था कि नाउ वी हैव जस्ट रिसेंटली सीन के इजराइल ईरान के बीच में एक बहुत बड़ा एक कशमकश हुआ। यानी दे हैड होल लॉट ऑफ दिस थिंग फाइट। इवन पैलेस्टीनियन को जो है उनको भी पूरा खत्म कर दिया। इस हिसाब से हमने देखा कि इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत ही उसमें मशक्कत की थी। They had also done, मतलब उन्होंने काफी ट्राई किया, बट अल्टीमेटली एक्चुअली द थिंग दैट इज यूनाइटेड नेशंस को किसी ने कोई चीज़ मतलब कोई तवज्जो ही नहीं दिया। वो एकदम मतलब कर ही नहीं पाया। एंड इससे हुआ ऐसा कि इवन अदर कंट्रीज जो है मतलब अदर कंट्रीज हैड आल्सो फेल्ड टू कंट्रोल द होल सिचुएशन बिटवीन the dominations of America as well as the domination of Israel on Palestine. So मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपको क्या लगता है कि आगे जाके यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहेगा और उसकी इज्जत कहाँ तक रहेगी? विल पीपल फॉलो, विल कंट्रीज मानेंगे उनको, या उसको एकदम साइडलाइन कर दिया जाएगा? दैट इज मेरा एक क्वेश्चन था सर। थैंक यू सर। Even now the United Nations has been sidelined, even in this
Ukraine Russia war and Iran Israel war, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास पावर्स हैं टू पनिश द अग्रेसर. ईरान इजराइल वार में अग्रेसर इज इजराइल. पहला वार उन्होंने किया. यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में लिखा है कि यू कैन नॉट यूज फोर्स टू रिजॉल्व यूर कॉन्फ्लिक्ट्स. और वार के जरिए नहीं, डायलॉग के जरिए, डिबेट के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए, रिकंसिलिएशन, मीडिएशन, ऐसे आप इस टूल से आप पीसफुली यू हैव टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो यूएन एक्शन उसी वक्त ले सकता है जब पांचों वीटो पावर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर यूनानिमसली टेकिंग ए डिसीजन टू पनिश द एग्रेसर. ये सिर्फ 1950 में एक बार हुआ था. साउथ कोरिया के फेवर में नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट स्टेट ने अटैक किया था, तो वहां पर कलेक्टिवली मिलिट्री फोर्सेस अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वेर सेंट, क्योंकि सोवियत यूनियन ने वीटो यूज नहीं किया. अब वहां पे वीटो है. वीटो इसलिए दिया गया है कि these 5 countries परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर पावरफुल नेशंस. अगर कहीं आर्मी भेजना पड़े तो वो लोग दे सकते हैं. देखिए कई कंट्रीज हैं वर्ल्ड में. एक कंट्री है फॉर एग्जांपल कोस्टा रिका. कोस्टा रिका में आर्मी ही नहीं है, बताइए. देयर इज नो आर्मी इन कोस्टा रिका, देयर इज ओनली पुलिस. ये लैटिन अमेरिकन स्टेट है और यूनाइटेड नेशंस ने वहां पे एक यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका में. तो कोस्टा रिका को आप कहें भाई हमको वहां पे अटैक हुआ है, उनको पनिश करना है, आप 100 सोल्जर्स को भेजिए. वो कहेगा भैया हमारे पास आर्मी नहीं है, हम कहां से भेजें. तो यू नो ओनली दोज हु आर कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग पीस. हम सरपंच, वो गांव में 5 लोगों का सरपंच बनाते हैं. एक सरपंच होता है और 5 लोगों का पंचायत होती है. वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात सब सुनते हैं और वो यूनानिमसली डिसीजन लेंगे तो फिर वहां गांव में पीस होगा. तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये पंचायत है, ग्लोबल पंचायत. अगर वो 5 एक साथ हो जाएंगे तो युद्ध कहीं नहीं होगा, पीस रहेगा दुनिया में. और वो 5 कभी ये कि यूनाइटेड नहीं रहते हैं. सोवियत यूनियन अमेरिका से लड़ता है, अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ता है, चाइना से लड़ता है. यू नो सुपर पावर राइवलरी इज देयर. बट एनीवे it will continue and there is always scope for peace. और आदमी कॉन्फ्लिक्ट से भी इश्यूज सॉल्व होते हैं. देखिए ईरान इजराइल की वार से कम इजराइल को ये तो अकल आ गई कि गाजा के लोग कैसा फील कर रहे हैं. गाजा में और तलावीव में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी उतना ही डिस्ट्रक्शन हुआ है. This is wrong to say that Israel wants to have nuclear weapons and Iran should not develop nuclear weapons. अरे भाई या तो आप भी मत रखिए, उनको भी मत रखने दीजिए. अगर आप रख रहे हैं तो वो भी रखेगा. It is like that. It has to be on equal footing. Sovereign equality of states एक concept है. सारे states equal हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है. So it depends on your economy, it depends on your military. अब हम वर्ल्ड में 4th और 5th लार्जेस्ट मिलिट्री हैं दुनिया में, लेकिन 4 दिन में सीज फायर कर लिया, क्या फायदा. अरे भैया आप वो आधा कश्मीर भी लेना चाहिए था. अगले 4 दिन वार कर लेते, वो आधा कश्मीर भी लेते, लेकिन वो नहीं हुआ. बिकॉज आवर लीडरशिप, लीडर्स, वी हैव डीलर्स. हमारी सरकार में लीडर्स कम है, डीलर्स ज्यादा हैं. दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग. फ्रेंड्स, if there is any question we can take it as a last question. तो 2:12 हुए हैं और आप सब लोग सुबह 9 बजे से लॉग इन किए हैं. You are, I hope you are all enjoying. And सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी पूछिए. आतंकवाद, हमको लगता है कि आतंकवाद का
सबसे बड़ा प्रमुख कारण अशिक्षा है सर, बेरोजगारी है, जनसंख्या विस्फोट है। तो हम लोग क्यों ने वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी अपनाए और जनसंख्या पर कंट्रोल करें? लेकिन हमारे देश में तो वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी तो है नहीं। गरीब के अच्छा। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है और हम लोगों के यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गरीब के बच्चे जो है कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं। देखिए इंदिरा गांधी ने 3 लैंग्वेज फार्मूला लेके आई थी। वन इज योर मदर टंग, वन इज योर स्टेट लैंग्वेज, वन इज नेशनल लैंग्वेज। और नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी है। अच्छा, हम कर्नाटक में कन्नड़ा है नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, कर्नाटका मुस्लिम्स स्पीक एंड स्टडी इन उर्दू, तो they have mother tongue Urdu is the mother tongue, Kannada is the state language, Hindi is the national language, and English is an international language. We were having 4 language formula. हमारे यहाँ 4 language formula था। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। और +2 के बाद आप चाहें तो पूरे देश में इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि यू हैव लिंग्विस्टिक स्टेट्स और एजुकेशन इज नॉट इन द यूनियन लिस्ट। देखिए, गवर्नमेंट के पावर्स 3 हिस्सों में बांटे हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट मीन्स ज्वाइंट लिस्ट। एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइंट लिस्ट में है। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन एजुकेशनल मैटर्स। अगर आप कहेंगे कि पूरा एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, ऑल द स्टेट्स विल बी हैप्पी, क्योंकि तनख्वाहें जो हैं दिल्ली से आएंगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वो तो सरकारें खुश होगी, लेकिन भारत सरकार लेगी नहीं। बट भारत सरकार करेगी नहीं। गवर्नमेंट को तो सर एक काम करना चाहिए, स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, उसी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ेंगे, सर गरीब पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर सभी पॉलिटिशियन के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। पॉलिटिशियन के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सुनिए ना सुनिए, मेरा एग्जांपल देखिएगा, कितना मजेदार है। आई हैड ए फ्रेंड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु की सरकार ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स के लिए थी, कम्युनिस्ट सरकार। और वो मेरा दोस्त का फादर जो है मिनिस्टर था ज्योति बाबू के सरकार में। और उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, मास्टर्स कहाँ से किया? इंग्लैंड से। पता है, कम्युनिस्ट हैं और आप अपने बच्चों को कैपिटलिस्ट कंट्रीज में भेज रहे हैं, बिकॉज द बेस्ट एजुकेशन इज अवेलेबल। इसी तरह से हमें ये करना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे 50% सीट शुड बी गिवन टू पुअर पीपल, या उनकी फीस या तो सरकार दे दे प्राइवेट इदारों को। इफ दैट कैन बी डन, देन थिंग्स कैन इम्प्रूव। अदरवाइज नीचे तबके का आदमी को उठाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये समस्या दूर नहीं होगी सर। बहुत गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेवल पे हो या हाई एजुकेशन लेवल पे अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। मैंने कई जगह पर देखा है, प्राइमरी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ाना ही नहीं चाहते। दैट इज मेजर प्रॉब्लम। अगर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने लगे तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की बराबरी कर सकते हैं। हम सब लोगों में मुझे लगता है कि मोर देन 70% पीपल ऐसे होंगे, शिक्षक ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड सरकारी स्कूल से ही होगा। हम किसी प्राइवेट बड़े स्कूल से पढ़कर नहीं आए हैं। तो ये जरूरी है कि हम पहले अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको इम्प्रूव करें। हम या हमसे जुड़े जो शिक्षक हैं उनको समझाएं कि आप बच्चों में आप अपने काम को ईमानदारी से करें। आप शिक्षा जो आप दान देना आपका कर्तव्य है, वो उस काम को ईमानदारी से करें। ये सबसे ज्यादा सही है सर। लेकिन अगर
सभी सिस्टम से जुड़े हुए आदमी अगर सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू करेंगे, टीचर के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ेंगे That तो is टीचर not खुद पढ़ाना possible शुरू in करेगा। Indian. That is not possible in Indian अपना अपना society. थिंकिंग है क्योंकि बहुत सर, डाइवर्सिटी आपका अपना है थिंकिंग हमारे है। यहाँ, बहुत डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी में, पहले इस कहाँ थे डाइवर्सिटी में प्राइवेट मेंटेन करना स्कूल? तो बहुत पहले मुश्किल नहीं है। थे तो क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे? आप प्राइवेट स्कूल क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट पहले स्कूल तो पढ़ाने नहीं वाला भी थे। कोई इंसान ही हम है ना लोग भाई। कहाँ हम से आपसे आए हैं? कम सब पढ़ा लोग लिखा तो है वहीं वो। से आए हैं। बिल्कुल, हम आपसे कम पढ़ा लिखा है वो प्राइवेट स्कूल में। हम ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन मैं बात कह रहा सही हूँ, मैं सर, इस हम बात आपके के बारे में पूरे नहीं बोल पूरे रहा। पहले तो नहीं प्राइवेट थे पूरे ही, था ही नहीं, सभी तो उसी मैं से अपने पढ़ के आगे पर्सनल बढ़े हैं। एक्सपीरियंस से पहले आपको क्या ये बात पढ़ाई नहीं बता रहा होती हूँ थी? कि कहीं सिस्टम का प्राइमरी दोष लेवल तो नहीं पे, है? मिडिल स्कूल लेवल पे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। जब क्यों पढ़ाया ही ऐसा नहीं हुआ? जाएगा तो सिर्फ ये सब हमारी गलती होल्ड है। ऑन एजुकेशन ये का हमारी होल्ड ऑन गलती है। किस हम कारण से काम हुआ? नहीं करना चाहते हैं सर, ये हमारी बड़ी गलती है। हम काम नहीं करना चाहते हैं। एक बार जब नौकरी मिल होल्ड गई ऑन तो होने हम का आराम से कारण क्या सो एक हुआ? जाते मिनट हैं। मुझे सिस्टम भी क्या कर बोलने का रहा है? मौका दीजिए। आलोक भाई और आप एमडी साहब, मुझे भी बोलने का हाँ मौका मिला दीजिए। बोल। आलोक भाई से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूं। और एमडी साहब, आप जो कह रहे हैं ना, टीचर्स ईमानदारी नहीं करते हैं। आप आकर देखिए झारखंड में या बिहार में, यहाँ टीचर्स को पढ़ाने के अलावा इतने सारे काम दिए गए हैं कि वो पढ़ाएंगे कैसे? ठीक है, उनको तो सारा डेटा देना है, दिन भर की खिचड़ी का रिपोर्ट देनी है, दिन भर के खाना का रिपोर्ट देना है, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे गए, दुनिया भर के तो रिपोर्ट दिया जा रहा है। देखिए ये ठीक है, जो तो नहीं, बासित जो साहब आप सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, दैट इज अ सही कह रहे डिफरेंट हैं। इशू। ये अलग इशू है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं सर, जानता दोनों हूँ, ही मैं देख रिलेटेड है, रहा हूँ दो कि रिलेटेड है। 4 बजे तक टीचर 12 बजे तक काम करते हैं, 12 से 4 टीचर बैठ के सिर्फ गॉसिप करते हैं। दोनों आप आप सर इससे सभी सिस्टम पहले के निकलना जितने होगा भी हमें बाहर। एम्प्लॉई हैं नहीं सर, सबको वो सरकारी एक विद्यालय में भेज हाँ के देखिए सिस्टम सही होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल, सर, ये सर, ये तमाम इन सब प्राइवेट चीजों को स्कूलों को बदलने की पहले जरूरत बंद है। करवाइए। तमाम प्राइवेट स्कूलों को पहले बंद जैसे करवाइए, ही उसके बाद में सभी सरकारी एम्प्लॉय के बच्चे दीजिएगा। सरकारी विद्यालय जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं वो टाइट हो जाएंगे, अपने विद्यालय सुचारू ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। उसमें फैसिलिटी भी बढ़ जाएगा क्योंकि उनके भी बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी चाहिए। सिस्टम आलोक की सर, गलती आपकी है, सोच सिस्टम का बहुत दोष है अच्छी कहीं है। न कहीं। आलोक सर, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया में इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया जाए और गवर्नमेंट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अभी तो देखिए लखनऊ में और कई जगह जो है ये हो रहा है कि अब जो है गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करने के कागार पर लाया गया है। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजें जो है वो प्रैक्टिकली फील्ड पे जो है वो जमीन पर हकीकत में नहीं आ पा सर रही हैं। आज से 25-30 साल पहले सर सभी तो सरकारी विद्यालय से ही पढ़ के आए हैं। देखिए उस समय का एजुकेशन और अभी के एजुकेशन में कितना अंतर आ गया। ये फॉल डाउन होने का कारण तो कम से कम सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा Hello है। friends, तो let me cast the vote of thanks to my esteemed बाकी person. सबका अपना अपना थिंकिंग है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, वोट ऑफ थैंक्स दीजिए आप। Yes, it is both an honor and pleasure for me to convey the vote of thanks from the behalf of HRDC, AMU, and our esteemed and privileged scholars who have joined here in orientation program, to our esteemed professor Haq sir and also Wajipur sir for giving us such an enlightening and informative session on such a issue that has always been in debate for a long period of time in India after the independence, like terrorism. So this is also a burning issue even today, and at the time, as he has given us so much knowledge about that, how state use these things for their personal benefits, and I can say he enriched our knowledge, that whatever we have earlier have, just we get some more about that. I'm very thankful, and from the behalf of all of the participants and from behalf of HRDC-MU, I convey the thanks to my resource person, Haq Saab. Thank you very much, sir. Thank you. I will just take 1 minute, friends. I enjoyed discussion with all of you, especially the last part of the discussion, government colleges versus private colleges. देखिए, मैं भी पूरी जिंदगी भर सरकारी इदारों में पढ़ा हूँ। सरकारी इदारों में पढ़ते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ली और इंग्लैंड में भी पढ़ने गए।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं बीए करता था, that was a private college but aided by government. Colleges, minorities can establish colleges, but grants come from, salary comes from state. You know, when the teachers are appointed, वो पैसे लेके, कर्नाटक में बड़ा करप्शन था, अभी भी है, पैसे लेके नौकरी देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, आपको 10 लाख 20 लाख रुपया लेंगे और आपको लेक्चरर बना देंगे। और वही लोग पैसा दे सकते हैं जिनके पास पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ट्राई एनी टाइम इन कर्नाटक टू गेट ए जॉब, क्योंकि हमको अलीगढ़